Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start about a new chapter of class 5th science, chapter number 14, that is about our environment and pollution. So, students, as we all know that we live in an environment. Now, what makes up our environment? See, all the living and non-living things which are around us and their interaction between them, that makes up our environment. All right. So, in this session, we will learn about the concept of environment in a detailed manner and the very important topic of pollution, which is damaging our environment. Okay. So, that means in this lesson, we will cover that what is pollution. Then we will learn about the different types of pollution like air pollution, land pollution, noise pollution, and then the last one known as water pollution. Okay, see. So, first of all, we have to look at the pictures given below and write the type of pollution. यहाँ पे कुछ pictures given है, इन्हें हमें observe करना है, and then we have to write the type of pollution they are showing to us. In the first picture, you can see that in factories की chimneys के through काफी सारा smoke and carbon emission is getting out. So this is leading to what? Air pollution. Alright. So right over here, air pollution, because due to this, the air is getting polluted. Alright. Secondly, you can see that all of this dirty water is getting out and is getting mixed with the water bodies. Alright. So this is what is known as water pollution. Then the next picture is of what? Land or soil pollution. Okay. And the last one, this is noise pollution. Alright. Because there is too much of sound and the loudspeakers continuously being blown off. So this is what is known as noise pollution. Or we could say sound pollution, anything. Okay. Sure. So now let's start the chapter. There are many living and non-living things around us, and these living and non-living things like plants, animals, soil, water, and human beings together form our surroundings. The surroundings in which we live is called the environment. Same as I told you. कि हाँ, हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। एंड ये जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, ह्यूमन बींग्स, ये मिलकर क्या बनाती हैं? हमारी सराउंडिंग्स बनाती हैं। एंड जिस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं दैट इज कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। सो ओवर द ईयर्स, ठीक है, क्या जैसे जैसे समय बीतता है स्टूडेंट्स, समय के साथ क्या हुआ है? मैन हैज पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट। हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया है? पोल्यूट कर दिया गया है। द हार्मफुल चेंजेस ब्रॉट इन द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड पोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में जितने भी हार्मफुल चेंजेस आए हैं दैट इज व्हाट इज नोन एज पोल्यूशन। So now what is pollution? The term pollution is used to describe the discharge of pollutants into the environment. Pollution, अगर आप pollution term को define करना चाहते हो तो इस pollution term को use किया जाता है to describe कि जब environment में pollutants को discharge कर देते हैं, that is known as pollution. Means air, water and land का contaminate होना, ठीक है, गंदा होना, that is known as pollution. ठीक है, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, व्हीकल से फैक्ट्रीज से क्या होता है? स्मोक प्रोड्यूस होता है एंड वो स्मोक क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। देन केमिकल एंड फैक्ट्री वेस्ट, केमिकल्स हो गए, फैक्ट्री का वेस्ट हो गया, ये वाटर को पोल्यूट करता है, लैंड को पोल्यूट करता है, ठीक है। गार्बेज एंड अदर वेस्ट स्पॉइल द सॉइल ऑल्सो। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विच आर कॉज्ड ड्यू टू some human activities. So now they have given you the types of pollution. How many? There are 4 types of pollution. That is air pollution, water pollution, soil pollution or land pollution, and the last is noise pollution.
First of all, we have what? Air pollution. So you can see this is the picture which is showing the air pollution. So air pollution कब होता है? When harmful gases mix with the other particles in the air. हमारे air में जब harmful जो gases होती हैं वो बाकी जो particles हैं या components हैं air के उसके साथ जब mix हो जाती है harmful gases, that is what is known as air pollution. ठीक है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, ये सभी प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट? एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है कि एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं इन द ह्यूमन बीइंग्स. राइट, उसके अलावा इट कॉजेज डैमेज टू प्लांट्स, प्लांट्स को डैमेज होता है. प्लांट ग्रोथ स्लो डाउन, प्लांट की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है एंड धीरे धीरे प्लांट क्या होने लगते हैं? वीक भी होने लगते हैं एंड देन इवेंचुअली द प्लांट्स डाई. राइट, चलो. Second, we have what? Water pollution, and this is the picture which is showing you the water pollution. So water pollution students कब होता है? When the water sources become polluted by human activities. जब क्या जो water sources है जितने भी, we have discussed the different types of water sources in our previous chapter, right? So ये जब water sources human activities की वजह से pollute होते हैं, that is what is known as water pollution. For examples, it could be caused by the discharge of industrial and household waste into the natural water bodies. जितना भी industrial waste है, household waste है, उसे जब हम बिना ट्रीट किए water bodies में discharge कर देते हैं, that causes water pollution. ठीक है, उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स. ठीक है, रिवर्स में कपड़े धोना, एनिमल्स जो हैं उनको बेथ करवाना, नहलाना इन द रूरल एरियाज. ठीक है, दैट ऑल्सो लीड टू वाटर पोल्यूशन ओनली. देन ऑयल स्पिल्स, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं वो भी प्राइमरी सोर्सेज है पोल्यूशन के इन द मेरीन वाटर्स. ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि ऑयल स्पिल्स कॉज द वाटर टू बी अनसूटेबल फॉर मेरीन लाइफ एंड प्लांट्स. मेरीन लाइफ यानी कि वो लाइफ जो पानी के अंदर एग्जिस्ट करती है. तो जितनी भी मेरीन लाइफ है, प्लांट्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, उनके लिए लाइफ पानी के अंदर अनसूटेबल हो जाती है जब पानी में ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ड्यू टू विच इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट? ठीक है, वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है कि इट इज टॉक्सिक टू बोथ. ठीक है, वाटर पोल्यूशन फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए ही टॉक्सिक होता है एंड ऑल्सो इट कॉजेज इलनेस टू ह्यूमंस. वाटर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बींग्स से भी क्या होती है? बीमारियां होती हैं. नेक्स्ट में have the topic land pollution. अब land pollution क्या है? So students, plastic bag, glass bottle and metal containers, ये सभी मेन सोर्सेज हैं लैंड और सॉइल पोल्यूशन की. उसके अलावा सॉलिड वेस्ट या वेस्ट जो हमें माइंस से प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट से या एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट, ये सभी अदर सोर्सेज है जिसकी वजह से लैंड और द सॉइल गेट पोल्यूटेड. Now, what is the effect of land pollution? So, as a result of land contamination की वजह से soil becomes barren. Soil क्या हो जाती है? Barren होने लगती है. ठीक है, यानी कि उसकी fertility खत्म हो जाती है. And this is not only affects the life forms in the soil, but it also affects the plant life. And इस soil के barren होने से केवल जो सॉइल के अंदर लाइफ फॉर्म्स रहते हैं केवल उनकी ही लाइफ अफेक्ट नहीं होती बल्कि जो प्लांट लाइफ है इट आल्सो गेट्स अफेक्टेड बिकॉज प्लांट्स गेट्स वाटर एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ओनली. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? ग्लोबल वार्मिंग. सी, द अर्थ इज कवर्ड बाय अ क्लाउड ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है या एक कवर है गैसेस का, क्लाउड है गैसेस का, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है, सर्टेन गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. दे हैव द एबिलिटी टू ट्रैप द सन्स हीट. ये जितने भी गैसेस हमने डिस्कस करी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, इनके पास क्या एबिलिटी होती है कि ये सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं. ऑलराइट, एंड दीज गैसेस, फिर ये गैसेस क्या नहीं करती, उस हीट को वापस स्पेस में एस्केप आउट होने के लिए अलाउ नहीं करती है. सो दिस हीट कीप्स द अर्थ वार्म. अब क्योंकि हीट एक बार अर्थ के अंदर एंटर कर गई तो ये वापस नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से अर्थ कैसा रहता है? वार्म रहता है. एंड इस इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट.
एंड ये सारी गैसेस कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, राइट. But when the concentrations of these gases increase in the atmosphere, the average temperature of the earth increases. But जब इन gases का concentration जो है वो हमारे atmosphere में एक average amount से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमारे earth का एक average temperature increase होने लगता है. Alright, and this is what we call global warming. इसी को कहा जाता है global warming. ठीक है. सो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट का चेंज होना ऑन द अर्थ. इट मीन्स व्हाट कि जितने भी पोलर आइस है वो आपकी मेल्ट होने लगेगी बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर एक इनॉर्मस रेट पे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, हीट ज़्यादा ट्रैप हो चुकी है इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो पोलर आइस कैप्स है, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं एंड वो सारा पानी नीचे आता है जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो राइज होता है. ठीक है, एंड जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वो पानी के सबमर्ज हो जाते हैं नेक्स्ट टू द सी एंड इट ऑल्सो कॉजेज फ्लड्स काइंड ऑफ डिजास्टर से. राइट, चलो. So one of the ways to mitigate global warming is to reduce the greenhouse gas emissions. So अगर हम global warming को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, so उसका एक तरीका क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाए. ठीक है, एंड सबसे इफेक्टिव तरीका जो है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करने का, दैट इज टू बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट किया जाए. राइट, वाई? बिकॉज ट्रीज जो है वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन ग्रीन हाउस गैस है. राइट, now next we have the topic or the last type of pollution known as noise pollution. So as we all know that sound is important to us but noise is not. Sound हमारे लिए important है but noise यानी कि शोर जो है वो important नहीं होता है. ठीक है, नॉइस क्या है? नॉइस एक अनवांटेड साउंड है जो हमारे ईयर्स में एक फील करवाती है, यानी कि हम इरिटेटेड फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं व्हेन वी हियर नॉइस. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. अब नॉइज पोल्यूशन मेनली किसकी वजह से होता है? इंडस्ट्रियल मशीनरी, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक की वजह से. What are its effects? It has adverse effects on human health and can be damaging to the ears. Noise pollution का काफ़ी adverse effect होता है human health पर and also it could be damaging. It could be dangerous for our ears also because उससे हमारे ears damage हो सकते हैं. ठीक है? Now let us recall the chapter. So our environment is formed by the things that surround us. हमारा environment किससे बना है? उन सभी चीज़ों से जो हमारे surroundings में होती हैं, जैसे कि the living as well as the non-living things. ठीक है? The injurious changes brought in the environment by human activities are called pollution. जितने भी harmful changes हमारे environment में आते हैं human activities की वजह से, that is called pollution. How many? Mainly 4 types of pollution are there. That is air pollution, water pollution, land or soil pollution, and the last is noise pollution. Air pollution can cause many diseases. Air pollution के through humans में काफ़ी सारी diseases हो सकती हैं. Industrial effluents and household waste आपके main cause हैं water pollution के. Then soil की fertility जो student वो decrease हो जाती है due to land pollution. And at the last, the pressure of sound. Sound का जो pressure environment में बहुत ज़्यादा increase होता है, that causes noise pollution. Okay? The chapter is completed. This was what? The different types of pollution which are damaging our environment on a what? Day by day time period. Okay? So that's all for today. Let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep learning well and thanks to everyone.